السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں اریبہ سلطان اور میں ہوں ماجد علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملے میں ایک سویلین اور فوجی جوان شہید ہو گیا، جبکہ 9 شہری زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والے حوالدار محمد امیر کی عمر 30 سال اور میاں والی سے تعلق تھا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے خودکش حملے میں ایک شہری اور ایک فوجی جوان شہید جبکہ 9 شہری زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والے حوالدار محمد امیر کی عمر 30 سال اور میاں والی سے تعلق تھا۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ 14 دسمبر کو میران شاہ کے علاقے میں کیا گیا۔ واضح رہے کل عدم TTP نئے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی افراد، خواتین، اسکول کے بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گرد مایوس ہیں۔ ریاست نے دہشت گردوں کے تمام مطالبات کو مسترد کر کے آئین کے مطابق ان سے نمٹنے کا عزم کر لیا ہے۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو بڑی حد تک محدود کر دیا گیا تھا۔ دہشت گرد دوبارہ منظم نہیں ہو سکے ہیں، ان کے لیے کوئی سہولت کا مرکز نہیں ہے۔ مایوس دہشت گرد عناصر اب اپنے آخری حربے آزما کر ریاست کی توجہ چاہتے ہیں۔ اور CTD پنجاب کے ایڈیشنل IG عمران محمود نے لاہور میں جوہر ٹاؤن بم دھماکے کی تحقیقات اور ملزم کی گرفتاری کا کریڈٹ وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ عمران محمود نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کے ملزمان CTD نے گرفتار کیے، رانا ثناء اللہ یا وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لاہور میں جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کا صحرا کس کے سر بندھے گا؟ CTD پنجاب کے سربراہ ایڈیشنل IG عمران محمود کے بیان نے نئی بحث چھیڑ دی۔ کیس CTD پنجاب میں درج ہوا تھا، اس کی تفتیش CTD پنجاب نے کی تھی، اس کے ملزمان CTD پنجاب نے گرفتار کیے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یا اسلام آباد کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ گزشتہ منگل کو عمران محمود نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری سے آگاہ کیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے دھماکے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا بتایا تھا۔ دہشت گردی کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ انوالومنٹ وہ نظر آتی ہے۔ ایڈیشنل IG عمران محمود نے کیس کو حل کرنے کا کریڈٹ CTD کو دیتے ہوئے کہا کہ دھماکے کے ملزمان CTD نے گرفتار کیے، رانا ثناء اللہ یا وفاقی حکومت کا اس کامیابی سے کوئی تعلق نہیں۔ جی لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ ون تھنگ جی، کہ یہ کیس CTD پنجاب میں درج ہوا تھا، اس کی تفتیش CTD پنجاب نے کی تھی، اس کے ملزمان CTD پنجاب نے گرفتار کیے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یا اسلام آباد کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ CTD پنجاب کے سربراہ نے جوہر ٹاؤن دھماکے کے کیس کی کامیابی کا سہرا CTD اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے سر باندھ دیا اور پرویز الہی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب کا اور پنجاب حکومت کا، کیونکہ ان کی جو ہے معاونت قدم با قدم جو ہے ہمارے ساتھ رہی تھی۔ اس کیس میں خاص طور پہ چیف منسٹر پنجاب نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار لیا۔ گزشتہ برس لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات C کلاس کر دیے۔ پولیس کو 3 دن میں C کلاس کی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس رپورٹ پر عثمان سواتی کی درخواستیں نمٹا دیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا طیارہ اعظم سواتی کو گھمانے میں کیوں استعمال ہوا؟ ملک میں عجیب نظام چل رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اپنے خلاف حملے کا مقدمہ درج نہیں کرا سکا۔ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج مقدمات ختم۔ IG سندھ سمیت دیگر پولیس حکام سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے سینیٹر اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی کی درخواستوں پر پولیس کو 3 دن میں متعلقہ عدالتوں میں C کلاس کی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے درخواستیں نمٹا دی۔ سماعت کے بعد صحافیوں کی جانب سے اعظم سواتی کیس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کا جواب دینے سے IG سندھ گریز کرتے رہے۔ سر کتنے مقدمات تھے جو C کلاس کیے گئے؟ سر دیکھیں ابھی کورٹ میں چیزیں ہیں، مطلب 20
कोर्ट से तो खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, फिर आप मेरे से पूछ लीजिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वजीर आला का तैयारा आजम सवाती को घुमाने में क्यों इस्तेमाल हुआ। हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि आजम सवाती केस में इंसाफ फराहम करें। हम तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहते। अजीब निज़ाम है, साबिक वजीर आजम अपने खिलाफ हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। एक के बाद दीगरे उनके ऊपर केसेस कायम किए गए, 24-25 उनके ऊपर FIR की गई और उनको जगह जगह ले जाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि वजीर आला का जेट या हेलीकॉप्टर इस काम के लिए इस्तेमाल क्यों हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आजम स्वाति के जज रज़ा आसिफ जिन्होंने जजमेंट रिजर्व किया था उसका ट्रांसफ़र क्यों हुआ। आजम स्वाति से ऐसा कौन सा जुर्म हुआ है जिसकी सज़ा उन्हें दी जा रही है। इमरान इस्माइल का मजीद कहना था कि एक जुर्म की 2 FIR नहीं हो सकती। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR उनकी वालदा की मुद्दत में क्यों दर्ज नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। पुलिस अफसरान के कानून में दर्ज वक्त से पहले तबादलों से भी रोक दिया। पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ दरखास्त अदालत ने चारों सूबों की पुलिस से 10 साल में तब्दील किए गए अफसरान की फहरिस्त मांग ली। अदालत ने हुक्म दिया कि मुकर्ररा वक्त से पहले तबादला नागुज़ीर हो तो वजूहात तहरीर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अफसर को सीनियर पुलिस अफसर की मुशावरत के बगैर हटाने से भी रोक दिया है। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर अता बंतियाल ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस अफसरान के तबादले MPA के कहने पर नहीं होने चाहिए। तासुर है पुलिस को हुकूमतें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। पुलिस में तफ्तीश की महारत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नाकिस शवाहिद पेश किए जाते हैं जिनसे मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचता है। इमरान खान ने हफ्ते के दिन असम्बलियां तोड़ने की तारीख देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहना था कि अब मुशावरत नहीं अमली इकदामात होंगे। 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने की तारीख दूंगा। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। जिस शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ किए जा रहे हैं, हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं। माइशत तबाही की तरफ जा इसलिए रही है कि हम हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए करप्शन। फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। 3 महंगी महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से निकाली हैं और एक नवाज शरीफ ने निकाली। नवाज शरीफ तो चले मफरूर है, अभी आएगा, ड्राई क्लीन हो जाएगा फिर से। मैं कोई मुल्क से बाहर नहीं भागा ये सारे चोरों की तरह। ये सारा शरीफ खानदान भी बाहर भाग जाता है जब केस हो। मैं यहीं बैठा हुआ हूँ और यही लड़ा हूँ केस। जिस दल में हम गिरते जा रहे हैं, इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, या इंतशार होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील की जाएं या नहीं, GTV ने अवाम की राय जानने की कोशिश की, जिस पर अवाम की जानिब से मिला जुला मौक़िफ़ सामने आया। किसी ने मौशी हालात की वजह से असम्बलियों की तहलील को ख़तरनाक करार दिया, तो किसी का कहना है कि नए इंतखाबात ही मुल्क को मौशी इस्तेहकाम दे सकते हैं। असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुल्क पहले से डिफ़ॉल्ट का शिकार है। भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि पंजाब और KP की असम्बली जो है उसको तोड़ा जाए, और ना हमारी मीशत बर्दाश्त कर सकती है। असम्बलियाँ इस वक्त तहलील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात के मुताबिक तो करनी चाहिए, क्योंकि जो है ना नई हुकूमत या ये केयर टेकर जो इम्पोर्टेड हुकूमत, इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। असम्बलियाँ भी तहलील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे फिर नए सिरे से एक प्रोसीजर चलेगा। बर्दाश्त कर सकेगा ये चोर लोगों का पैसे लाए, कर्जा भी उतरेगा जो चोरी किया है, और असम्बली तोड़ देवे, नया इंतखाबात करे। बेहतर ये है कि असम्बली तोड़ देवे, दोबारा इलेक्शन हो जाए। अब बदबख्ती है 13 पार्टियों को डर है कि हम नहीं जीत सकता है। बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क ऑलरेडी कर्जों के ऊपर है। जो अभी तनख्वाह बराबर नहीं हो रहे, हुकूमत से पेट्रोल खत्म हो रहा है,
अगर नए इंतखाबात करवाएंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो फैसला इंतहाई गलत है। अगर इन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है तो लड़कर पूरी करें। असम्बलियों से भाग जाना ये कोई कानूनी रास्ता नहीं है। इमरान खान को असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इनसे हुक्मरानों को नुकसान नहीं, इससे आम गरीब आवाम को नुकसान हो रहा है। असम्बली तोड़ने से मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा और आवाम को नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब के हवाले से एक और बड़ा इकदाम। तोनसा शरीफ की ज़िला का दर्जा देने की हतमी मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। अरसलान साहब बताइएगा, तोनसा शरीफ को ज़िले का दर्जा दिया जा रहा है तो यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? जी बिल्कुल, जो उनके काम हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, जो उनके फंड्स हैं, खासकर तरक्याती फंड्स, वो वहीं पर जो है उनके इस्तेमाल हो सकेंगे और उनको किसी जगह जाने की जरूरत, यानी लाहौर आकर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही जो है जनूबी पंजाब सूबा जो है उसके हवाले से एक सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया मुल्तान में, और उस हवाले से जो है तौंसा का बड़ा दरीना मुतालबा था वहाँ पे अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का कि इसको हर सूरत जो है उसको जिले का दर्जा दिया जाए। और इसमें मुलाकात जो हुई है आज वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही से डेरा गाजी खान के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली के, उसमें ख्वाजा शिराज महमूद, मोहम्मद अली, मोहम्मद खान लगारी, सैफुद्दीन खोसा, सरदार मोहम्मद महिउद्दीन खोसा, जावेद अख्तर, मोहतरम अपना मखतूम रजा अली और अली रजा दरेशक और राय जहूर शामिल थे। इन सब के मुतालबे पर वज़ीर आला ने फौरी कहा और उनका कहा कि उनका जो दरीना मुतालबा है कि उनके काम जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी, आपने अपडेट किया। और वफाकी हुकूमत ने DGIP फवाद असदुल्ला की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी है। फवाद असदुल्ला खान को रिटायरमेंट के बाइस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिनके पास इस डायरेक्टर जनरल ओहदा है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। इससे कबल वफाकी काबीना की जानिब से सर्कुलेशन के जरिए से सारे प्रोसेस की जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन से मुतल्लिक थी उसकी मंजूरी हासिल की गई थी। चूँकि फवाद असदुल्ला की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 18 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही थी, जिसकी बुनियाद के पर उन्हें ये सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 14 के तहत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर एक्सटेंशन का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहनुमा PTI असद उमर ने शहबाज सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अपने ट्वीट में कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। अभी आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। अपने ट्वीट में कहा कि महज चंद इंतहाई कीमती घड़ियां कोड़ियों के भाव लूटने का मुकदमा नहीं, बहरूपिये ने तोशा खाने में झाड़ू ही फेर दिया। सिर्फ तोशा खाने से 6 अरब की डकैती पकड़ी गई। कबल अस वक्त इलेक्शन का वाहिद मकसद मनी गाला की लूट मार छुपाना है। लाहौर सियासत का मरकज बन गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भी लाहौर में डेरे। पंजाब और KP के असम्बली तहलील के मामले पर सदर मुमलिकत की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से आज मुलाकात मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। भट्टी साहब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत जो है गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने एक फंक्शन में शिरकत की, आज भी वो करेंगे। उसके अलावा सेमिनार के अलावा उनकी जो है सियासी मुलाकातों में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात होगी। उसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात होगी। असम्बली के तहलील के हवाले से और ख़ासकर जो उनकी मुलाकातें इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना से हुई हैं 3 से 4, उस हवाले से उनको एतमाद में लेंगे। इस हवाले से उनका जो उनके करीबी ज़राए हैं सदर मुमलिकत के, वो ये दावा कर रहे हैं कि उस हवाले से तमाम जो मुशावरत है इमरान खान ने पहले ही मुकम्मल कर लिया असम्बलियों के तहलील करने के हवाले से, तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनको जरूर मुशावरत में शामिल करेंगे और उनके साथ साथ उनसे सदर मुमलिकत आज अहम मुलाकातें करेंगे। अरसलान रफ़ीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वफाकी शरई अदालत ने वजारत इंसानी हुकूक को ख्वाजा सरा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खुसूसी यूनिट के SOPs की तैयारी के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी 24 रोज़ में SOPs तय करके अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद क्या तफसीलातें जानते हैं अबरार हुसैन अस्तूरी से। जी अबरार, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, वफाकी शरई अदालत ने वजारत इंसानी हुकूक को जो है ख्वाजा सराओं बच्चों के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने की हिदायत कर दी है और अदालत ने खुसूसी यूनिट के SOPs की तैयारी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। जबकि वफाकी शरई अदालत में आज जब ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ मुकदमात की समाअत हो रही थी तो इस दौरान चीफ जस्टिस शरई अदालत ने कहा बिल्कुल ख्वाजा सरा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया जाएगा। वफाकी शरई अदालत की जानिब से ये हिदायत सामने आई हैं। अबरार हुसैन अस्तूरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन 3 माह के वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ रेड जोन की जानिब एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया है। मुलाजमीन का कहना है कि 1 माह की तनख्वाह अदा की गई है, 3 माह के वाजिबात बाकी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सब में मौजूद हूँ कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एहतजाजी रैली में, जिस पे मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनके 3 माह के वाजिबात जो है उनकी अदम अदायगी की गई है। 2 रोज़ कबल एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उन्होंने 1 माह की तनख्वाह जो है वो रिलीज़ कर दी है, जो इनको मिल जाएगी। ताहम ताहाल जो है इनके दीगर वाजिबात जो है वो अदा नहीं किए गए हैं, जिससे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से आज रेड जोन की जानिब एक रैली निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ इनके रहनुमा भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताएगा एडमिनिस्ट्रेटर ने कितने महीने की तनख्वाह रिलीज़ की और अभी आप कहाँ जा रहे हो, क्या इरादा है आप लोग? जी हमेशा हमें जिस तरह पिछले 5 सालों से तकलीफ में हम हैं, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर को पता है ना सूबाई हुकूमत को, तो हम लोग ने जो आज अपना इरादा किया है रेड जोन की तरफ, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमें 1 माह की तनख्वाह दी है, 1 माह की कच्चों को तनख्वाह दी है। हमारे ड्यूज जो हैं वो 3-3 माह के हैं, और ये जो हमेशा बाकी एडमिनिस्ट्रेटरों की तरह और सूबाई हुकूमत की तरह इन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया है। हम किसी सूरत भी अपने एहतजाज से नहीं हटेंगे। आज हम रेड जोन में जाएंगे, वहाँ हम जलसा करेंगे, हमारे मुकर्रीन उनसे खिताब करेंगे। हम तब तक अपना एहतजाज नहीं करेंगे जब तक सेक्रेटरी फाइनेंस या सूबाई हुकूमत का कोई आला ओहदेदार आकर हमसे मिनट मीटिंग नहीं करेगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कही कहना है कि आज ये रेड जोन जाएंगे, वहाँ पर एहतजाज करेंगे और जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं हो जाएंगे इनका एहतजाज जो जारी रहेगा। जी इस्लामिया कॉलेज कराची को बगैर किसी मुतबादल के खाली करवाने पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मज़ीद हमारी नुमाइंदा जमजम सईद से जानते हैं। जी जमजम, बताइएगा क्या कहना है तलबा का। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और एक मरतबा फिर से जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा जो है सरापा एहतजाज है। कॉलेज के खाली कराने के मामले पर जो है तलबा सड़कों पर निकल आए। मैं तलबा से बात करूँगी। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहेंगे। यहाँ पर कांच भी तोड़े गए, आग भी लगाई गई है, यहाँ पर टायर जलाए गए। क्या कहेंगे, ये एहतजाज कब तक इसी तरह से जारी रहेगा और कितने दिन तक आप लोग सड़कों पर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम लोगों को इस्लामी जमीयत तलबा को बिल्कुल इस मामले से हटा दिया गया था और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इस कॉलेज को खाली करने का। इन लोगों ने इस्लामी जमीयत तलबा को हटा के और सारा कॉलेज पहले से ही शिफ्ट कर दिया और बिल्कुल कल आके यहाँ पे सील लगाने के लिए पुलिस वाले आ जाएंगे। तो हम लोग तो यहाँ पे जब तक हम लोग को स्टे नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, हम लोग यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं अपने कैमरामैन को दूसरी जानिब भी लेकर चलूँगी। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को मामलात अगर ये दिखाऊं तो यहाँ पर जो है टायर भी जलाए गए, लकड़ी जलाई गई और इसके साथ जो ट्यूबलाइट होती है ना कॉलेज से, वो ट्यूबलाइट निकाल के यहाँ पर तोड़ी गई है। एक तरफ जो है वो तलबा पे गुस्सा पाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी जो है इस्लामिया कॉलेज के बाहर पहुँच चुकी है। और कराची के सफारी पार्क में मौजूद हतनिया मलिका 18 और सोनिया 16 साल की हो गईं। इंतजामिया की जानिब से पहली बार उनकी सालगिरह का एहतमाम किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। असगर, बताइएगा कैसे सेलिब्रेट की गई है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफारी पार्क में, जहाँ 2009 में 4 हथनियाँ लाई गई थी, यानी कि 2 जो है जू भेज दी गई थी, 2 यहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे साथ मौजूद है ये मलका है और मलका आज 18 साल की हो गई है, जबकि सोनिया जो है ब्लू ड्रेस में आप देख सकते हैं कि वो 16 साल की हो गई है। कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है हथनियों की जो है वो बाकायदा सालगिरह मनाई जा रही है। आज पहली बार ये स्टेप उठाया गया है।
है जू की सफारी पार्क की इंतजामिया की जानिब से इस सालगिरह के मेहमान खास गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और उसके एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान होंगे, जो कि न सिर्फ यहाँ पर केक काटेंगे बल्कि जो है इन तमाम तर खुशियों का जो बाकायदा खुद जो है वो अपने हाथ से आगाज़ करेंगे। जी, इस बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।